Hello everyone, welcome all, and this is the second lecture of aromaticity, and in the first lecture we have discussed the theory part, and in the second lecture we will solve the questions like we have to identify whether the given molecules are aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. तो ये सारे क्वेश्चंस है और भी क्वेश्चंस हम करेंगे कि उससे पता करें कि aromatic कौन सा है. For that this is benzene and सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है. The molecule should be cyclic, it should be planar, and third important thing is complete conjugation. And the last is it should follow the Huckel rule, that is 4n plus 2 pi electron, or it is for aromatic, and for anti-aromatic it is 4n pi electrons. So now we will check it is cyclic as well as it is also planar, and it is also in fully conjugation. It means इसके पूरे molecules में conjugation हो रहे हैं. Now we will count the pi electrons. Here we have three pi bonds. 3 pi bonds, we will have 6 pi electrons, and this comes in the category of 4n plus 2 pi electron. So for that this molecule is aromatic. And this is what this we call naphthalene. और इसमें देखेंगे and एक important चीज़ you should note it down in your copy that in order to check whether the molecule is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic, we have to check the circumference pi bond. For aromaticity, we consider circumference so here we have to only see. अगर हम लोग को पाई बॉन्ड्स देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस के पाई बॉन्ड्स को देखेंगे, यानी कि जितने भी जो सर्कमफेरेंस पे है बस उसको ही देखना है, यानी कि बीच वाले को हम लोग को काउंट नहीं करना है. तो हियर वी विल चेक इट इज ऑल इन कॉन्जुगेशन, सारे मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेशन में है. एंड हियर वी विल हैव 1 2 3 5 और 4 5, यानी कि 10 pi electrons. So it is also aromatic. Now what is the name of this? This is anthracene. And इसकी circumference pi bond देखना है, यानी कि सर्कल के circumference पे ये all सारा लाई कर रहा है, यानी कि we have to count all these pi bonds. And how many pi bonds is there? 3 to 5 and 7. So 7 to 14 pi electrons, and it also comes in the category of 4n plus 2 pi electrons, because if we put the value of n equals to how much, 1 2 3 4 5 6 7, then it will be 7. Sorry, if we put the value of n equals to 3, then 4 into 3 plus 2, 14 electron. यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. एन इज बेसिकली अ नंबर, इंटीजर. एंड हियर इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, इसमें भी हम लोग को पाई बॉन्ड्स देखना है, और एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग पाई बॉन्ड्स लोन पेयर या नेगेटिव उसको भी काउंट करेंगे, बट ओनली दैट नेगेटिव और लोन पेयर विल बी काउंटेड. दिस यू कैन राइट, ओनली दैट लोन पेयर वी हैव टू काउंट which take part in resonance. जो resonance में part लेंगे only that lone pair we have to count, not another. Like so here you can see that this lone pair of nitrogen is not taking part in the resonance. So only this, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. तो इसके पास भी क्या है, 6 pi electrons, that is it is also aromatic. Now we will see, this is what, this is pyridic. Now we will come to furan. फ्यूरान, इसमें ऑक्सीजन के पास
you can see that it has two lone pair of electrons. But one thing, important thing is that only the one lone pair of oxygen is taking part in conjugation. So we will count only one lone pair. So it is not taking part. So what will be the pi electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pi electrons. It means it is also aromatic. Now this is thiophene, and here you can also see that only one lone pair is taking part. So this is also 6 pi electrons, and it is also aromatic. This is pyrrole. This lone pair is taking part, and this is also aromatic. So these basically these are heterocyclic aromatic molecules. Now next is, here we can see that this carbon is not planar. They are sp3. Rest all is in sp2. बट ये दोनों क्या है, sp3 है, सो इट इज नॉन प्लेनर. Now next is cycloalkene, cyclopropene, and here you can see that this carbon, this sp3, so it is also non-planar, non-aromatic. Here you can see this is sp2 carbon, so it is planar, and it is also taking part. यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है. लाइक दिस, इस तरह से करते हैं. यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर ऐसे करेंगे तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड्स, इसका मूवमेंट हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, एंड वी हैव वन पाई बॉन्ड. एंड और पहले मैंने बताया कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इट इज एरोमेटिक. ये सिंपल चेक. एंड हियर यहाँ पे ये क्या है, एक तो पाई बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज. इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है. कैसे हो रहा है, डेफिनेशन में किस तरह से दिखा सकते हैं. इस तरह से हो रहा है रेजोनेंस. तो ये क्या है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यानी कि ये दो है, ये दो मिला के दो हो गया, और ये भी दो, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस इज एंटी एरोमेटिक. नाउ दिस केस यू कैन सी दैट ये जो कंडीशंस है और इस तरह से है. तो इस कंडीशन में ये जो CO बॉन्ड है, इट विल ब्रेक लाइक दिस. तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी प्लेनर ही था, बट यहाँ पे इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो गया. तो ये 100% ब्रोकन कंडीशन में रहता है. एक्सक्यूज मी. So this type of molecule, it will be in broken condition. So it will be fully break, because अगर कोई molecule अगर aromatic बना रहा है तो वो रिएक्शन करेगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करने से अगर इसमें ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो रहा है तो ये होगा. कोई भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जाता है कोई भी मॉलिक्यूल. उसी तरह से ये भी, ये ऐसे ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक होगा, कैसे होगा. यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी कि सारा sp2 है, और ये क्या है, 1 पाई बॉन्ड है, यानी कि इट इज एरोमेटिक. तो ये भी 100% ब्रोकन कंडीशंस में रहेगा. ना अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखेंगे. ये सारा आप लोग कर लिए होंगे. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. एन्यूलेंस. एन्यूलेंस होता क्या है, इसको एन्यूलेंस उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. इफ पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट at alternate position
then they are comes in the category of aniline system. अगर अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है कोई भी मॉलिक्यूल्स में तो उसको बोलते हैं एनिलिन सिस्टम. एग्जांपल बेंजीन. मान लीजिए बेंजीन से स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या है, इसमें भी अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, पाई बॉन्ड्स है. पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन में. तो बेंजीन को भी एनिलिन सिस्टम बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnHn. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Cn क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 होगा बेंजीन का. तो हम जानते हैं C6H6. तो इसको एनिलीन 6 एनिलीन बोलते हैं क्योंकि 6 कार्बन है तो इसको बोलते हैं 6 एनिलीन. सिमिलरली ये पहला एग्जांपल हो गया. दूसरा अगर हम लोग लेते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, ये C4H4 है यानी कि 4 एनिलीन होगा. और ये बेसिकली ये डाइमेराइज हो जाता है और ये डाई रेडिकल के फॉर्म में इट एग्जिस्टिंग डाई रेडिकल फॉर्म. ये डाई रेडिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये डाइमेराइज कर जाता है. ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे. दो इलेक्ट्रॉन्स इसके एक मिलके एक बॉन्ड, इसका एक मिलके बॉन्ड बनाया. तो कैसे प्रोडक्ट होगा, ये इस तरह से बन रहा है. तो पहले क्या था, पहले देखिए ये था एंटी एरोमेटिक. ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम था लेकिन ये डाइमेराइज किया तो कैसा बना, यहाँ पे प्लेनर है, नॉन प्लेनर है यानी कि ये नॉन एरोमेटिक. और मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लिखिए एक नोट बनाकर. सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक. तो क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है यानी कि लीस्ट स्टेबल से थोड़ा स्टेबल बन रहा है. यानी कि दिस रिएक्शंस मतलब ये फेवर्स करता है डाइमेराइजेशन को डाई रेडिकल्स इसके साइक्लोब्यूटाडाइन के. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी. Suppose we take the example of eight anilines. अगर इसका एग्जांपल लिए तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला CH8 होगा यानी कि 8 कार्बन. 8 कार्बन से पहले हम लोग 7 का देखते हैं. तो यानी कि इसको एनिलिन्स तो नहीं बोलेंगे. तो ये इसको पहले देख लीजिए आप. एक क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले. ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 7 मेंबर्ड है. 7 मेंबर्ड रिंग है, ये साइक्लिक तो है ही लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये sp3 है. sp3 है यानी कि इट इज नॉन प्लेनर यानी कि नॉन एरोमेटिक. और ये क्या है, इट इज एंटी एरोमेटिक. ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है लेकिन इसका रीजन मैं बताऊंगी. और ये क्या है, यहाँ पे भी इट इज एरोमेटिक
ये सारा प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एरोमेटिक। ये दिख तो रहा है कुछ ऐसे। एक और नोट आप बनाइएगा कि सम मॉलिक्यूल्स लुक लाइक aromatic, anti-aromatic, but actually they are non-aromatic। देखने से लगेगा जैसे कि ये भी मॉलिक्यूल्स देखने से आपको लग रहा है कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि हम बेंजीन का आप जानते हैं ये सारा sp2 होता है और इसके बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं sp2 के 120 डिग्री, और बेंजीन में भी 120 डिग्री ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अब ये 120 था, अब ये हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ा, यानी कि एंगल बढ़ा, यानी कि एंगल बढ़ रहा है, तो यानी कि मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेन आएगा कोई भी चीज़ का। यानी कि sp3 हम जानते हैं, sp3 कितने में स्टेबल होता है 109 डिग्री 45 मिनट जो होता है, तो यानी कि उसमें वो स्टेबल होता है। अब उसका मान लीजिए हम लोग बॉन्ड एंगल अगर बढ़ा रहे हैं या कम करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रेन आएगा, क्योंकि ये जो एंगल है जैसे पहले 120 था, यहाँ पे क्या हो गया 135 डिग्री, इस तरह का एंगल हो गया। यानी कि एंगल बढ़ा, यानी कि एंगल स्ट्रेन बढ़ा। तो एंगल स्ट्रेन तभी तक इसको कंपनसेट कर सकता है जब तक अगर एरोमेटिसिटी रहेगा तो एंगल स्ट्रेन को कंपनसेट कर देगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमिनेट एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन और ये नॉन एरोमेटिक तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है और इसमें एंगल स्ट्रेन हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो दूसरी तरह से एग्जिस्ट करता है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉन प्लेनर। ये अपना प्लानरिटी जो है वो लूज कर जाता है। क्यों लूज कर जाता है? क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल बढ़ता है, यानी कि एंगल स्ट्रेन बढ़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ 8 एनुलिन से पहले हम लोग 7 कार्बन वाले रिंग को समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे 8 एनुलिन सिस्टम को। 8 एनुलिन यानी कि 8 कार्बन।